بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن ہے ہمارا ہیئر کٹ۔ یہ بہت دلچسپ لیسن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 5 صفحے کا، لیکن اس میں فونٹ بڑے بڑے ہیں۔ اگلی کتاب میں جب 5 صفحے کا لیسن آئے گا تو اس کا فونٹ بھی چھوٹا چھوٹا ہوگا، اور وہ بھی 5 صفحے کا ہوگا، تو بڑا مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ اور اگر آپ وہ پڑھیں گے NCERT کی سیریز، تو اس میں بھی جو ہے فونٹ بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ چلیے ہیئر کٹ، اس سے متعلق پہلے الفاظ و معنی دیکھ لیے جائیں۔ ہیئر کٹ، کٹنگ جس کو ہم بولتے ہیں، بالوں کی کٹنگ، ہیئر کٹ۔ آج میں نے کٹنگ کروائی ہے تیرے نام والی۔ I've got a تیرے نام ہیئر کٹ today. I've I've got a گجنی کٹ today. ٹھیک ہے۔ ہیئر کٹ، کٹنگ، ٹو کٹ ہیئر، بال کاٹنا، تراشنا، اور ٹو گیٹ اے ہیئر کٹ، بال کٹوانا، بال کٹوانا، ٹو گیٹ اے ہیئر کٹ، کٹنگ کروانا بولے تو ٹو گیٹ اے ہیئر کٹ ایسے استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے اپنے بال کٹوائے ہیں۔ It looks like you have got a new haircut. It looks like you have got a new haircut. You look a changed man. تم بدلے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ You look a changed man. The new haircut suits you very well. نیا ہیئر کٹ جو ہے، نئی کٹنگ جو ہے، آپ کے چہرے پر بہت جم رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ You look just like کرشمہ کپور آفٹر یور ہیئر کٹ۔ آپ ہیئر کٹ کرانے کے بعد کرشمہ کپور جیسے دکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ جی، تو ٹو گیٹ اے ہیئر کٹ، بال کٹوانا۔ ٹو مارول، حیرت زدہ ہونا، حیران ہونا۔ ٹو مارول، حیرت زدہ ہونا، حیران ہونا۔ ایوری ون مارولڈ ایٹ یا آن ہر کریج، ایٹ سلیش آن، سلیش لگا دیجیے۔ ایوری ون مارولڈ ایٹ سلیش آن ہر کریج، ہر شخص اس کی ہمت پر حیرت زدہ تھا۔ چلیں جی، ایوری ون مارولڈ ایٹ سلیش آن ہر کریج، ہر شخص اس کی ہمت پر حیرت زدہ تھا۔ ٹو ٹویسٹ، موڑنا، مروڑنا، گھمانا، بل دینا۔ ٹویسٹ کے ٹویسٹ اینڈ ٹرن، یا ٹویسٹ اینڈ ٹرن، اس کے معنی پیچ و خم۔ ٹویسٹ، ٹویسٹ کے معنی، یہ ورب ہو تو اس کے معنی موڑنا، ٹویسٹ ہو تو اس کے ورب ہو تو اس کے معنی موڑنا۔ جیسے آپ کسی کا ہاتھ مروڑ دیں تو ہاتھ موڑنے کے لیے یا مروڑنے کے لیے ٹو ٹویسٹ ورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں نا۔ ہی ٹویسٹڈ مائی ہینڈ، اس نے میرا ہاتھ مروڑ دیا، موڑ دیا، ایسے آپ بول سکتے ہیں۔ کیا بول رہے جی؟ ادروائز اٹ ول بریک۔ اچھا جی، ٹویسٹ ہو گیا موڑنا، مروڑنا، گھمانا، بل دینا۔ ٹویسٹ اینڈ ٹرن، پیچ و خم۔ اچھا، ہم بولتے ہیں کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا، کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا، یعنی کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا، تو وہ ٹویسٹ ناؤن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ There was a twist in the tale۔ یہ پورا ورڈ اس طریقے سے پتہ نہیں ہے اس کے اندر، نہیں لکھ لیں چاہے تو یہیں پر کہیں۔ Twist in tale، a twist in tale، a twist in tale، کہانی میں ایک نیا موڑ۔ ٹیل، ٹی اے ایل ای، ٹیل، ٹیل بولتے ہیں کہانی کو، ٹی اے ایل ای۔ A twist in tale، ان ٹیل، ٹی اے ایل ای، ان الگ ہے پریپوزیشن، اور ٹیل، ٹی اے ایل ای۔ A twist in tale، کہانی میں ایک موڑ۔
टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर होते हैं, क्या लिखा हुआ ये, असीलुल लिसान, वो जुमला या फ़िक्रा जिसको ज़बान से अदा करना मुश्किल हो। टंग ट्विस्टर बोलते हैं ऐसे अल्फाज को या ऐसे अल्फाज के मजमूए को जिसका अदा करना ज़बान से मुश्किल हो। जैसे शब्बीर भाई का मशहूर जुमला है वो, क्या चांदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी चाच में चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर। क्या बोलते हैं इसको, टंग ट्विस्टर। चचा चार कचरे कच्चे, चचा चार कचरे पक्के। हाँ, कच्चे कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे, ऐसा करके एक शेर है। तो क्या कहते हैं, ये भी क्या है, टंग ट्विस्टर है। इस तरीके के अशार या इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके के फ़िक्रे इंग्लिश में भी होते हैं। इस तरीके के अल्फाज इंग्लिश में भी होते हैं। जी जी, ये दानिस्ता तौर पे बनाए जाते हैं ताकि ज़बान टूटे। अच्छा जी, टू पुट समबडी और समथिंग डाउन इन रजिस्टर और नोटबुक, किसी शख्स या चीज को कॉपी या रजिस्टर वगैरह में लिखना। टू पुट समबडी और समथिंग डाउन इन रजिस्टर और नोटबुक। टू पुट समथिंग डाउन का मतलब होता है कोई चीज लिखना। टू पुट डाउन, टू पुट समथिंग डाउन, टू पुट समबडीज नेम डाउन, मतलब लिखना। किसी काम या कारगुजारी में फाइक होना, कारगुजारी वगैरह किसी काम वगैरह की तरफ से। टू आउट डू, किसी काम या कारगुजारी में फाइक होना, टू आउट डू। अच्छा जी, नॉट टू बी आउटडन, किसी को भी अपने से आगे निकलने न देते हुए। देखिए, टू आउटडू का मतलब होता है कि आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैं काम में आपको पछाड़ दूं तो आई हैव आउटडन यू, आई हैव आउटडन यू। तो टू आउटडू का मतलब होता है काम में किसी को पिछाड़ देना या काम में किसी से आगे बढ़ जाना, किसी पर फौकियत ले जाना, फाइक हो जाना। ठीक है, किसी काम में किसी कारगुजारी में किसी से अच्छा और बेहतर काम करके आगे निकल जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, टू आउट डू। इसी तरीके से टू आउट रन एक लफ्ज होता है, आउट रन, दौड़ में किसी को पिछाड़ देना, क्या हो जाएगा ये, आउट रन। इसी तरीके से जिंदगी में किसी से आगे निकल जाना, यानी कोई शख्स, दो लोग बराबर के हैं लेकिन एक शख्स मर गया और एक शख्स जो जिंदा रहा, तो आउट लिव, उसको क्या बोलते हैं, आउट लिव। ठीक है, तो आउट रन, आउट डू, आउट लिव, जब आउट लगा के वर्ब के साथ इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो उसका ये मफहूम होता है कि आगे निकल जाना। हाँ, आउट स्लीप। आउटपुट तो रिजल्ट को बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। आउट स्लीप अलबत्ता आप बोल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोने में कोई शख्स फोकियत ले गया, एवरीवन इन द क्लासरूम, माशाल्लाह। आउट परफॉर्म बोलते हैं, आउट परफॉर्म, परफॉर्मेंस में किसी को पिछाड़ देना, आउट परफॉर्म बोलते हैं क्या, हाँ, यानी कारकर्दगी, कारकर्दगी में इतना अच्छा रहना कि बाकी लोग जो है उसके आगे, बाकी लोगों से आगे ले जाए, आगे चला जाए, वो फोकियत ले जाए, उसको क्या बोलते हैं, आउट परफॉर्म। कल इन्होंने पछाड़ दिया आपको, डिबेट हुआ था। इनपुट बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर है, आप कोई चीज लिखते हैं या कोई चीज आप करते हैं तो आप इनपुट दे रहे हैं, अब उसके नतीजे में जो रिजल्ट आ रहा है वो आउटपुट है। मिसाल, ये तो हो गया कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से आपके जहन में मैं कोई बात डालता रहूं डालता रहूं डालता रहूं, आपका जहन जो है तैयार हो गया अब ना, अब आप उस जहन की या उस फिक्र की बुनियाद पर जो काम करेंगे वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है, तो जी, और उसके इनपुट के नतीजे में जो आपका
रद्द अमल हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो क्या है आपका आउटपुट। आउटपुट के माने ही नतीजा होता है, आउटपुट के माने ही नतीजा होता है। हाँ, आउट हो गए, आउट ही बोलते हैं उसको। वो बाहर के माने में आउट हो गया, यानी मैदान से बाहर चला गया, वो आउट हो गया तो। जी, नॉट टू बी आउटडन, नॉट टू बी आउटडन इसके माना किसी किसी को भी अपने से आगे ना निकलने देते हुए, यानी ऐसा कि जिसको पछाड़ा ना जा सके, जिसको काम में मात न दी जा सके। नॉट टू बी आउटडन, शी ड्राइड अगेन, ठीक है, इस नियत से कि उसको पछाड़ा ना जा सके, शी ड्राइड अगेन, वो दोबारा से सवारी करेगी, या दोबारा से घुड़सवारी करेगी या गाड़ी चलाएगी। नॉट टू बी आउटडन शी ट्राइड अगेन, इसलिए कि उसको मात न दी जाए, उसने दोबारा कोशिश की, या वो पीछे न रह जाए, उसने दोबारा कोशिश की। वो किसी से पीछे न रह जाए इसलिए उसने दोबारा कोशिश की, वो किसी से पीछे न रह जाए इसलिए उसने दोबारा कोशिश की। नॉट टू बी आउटडन शी ट्राइड अगेन। क्या? नहीं, शी ट्राइड अगेन बस इस जगह। नॉट टू बी आउटडन शी ट्राइड अगेन, वो अपोस्ट्रोफी डी हटा दें। चलें जी। टू थिंक हाई ऑफ समबडी, किसी के बारे में बड़ा गुमान रखना या अच्छा गुमान रखना। टू थिंक हाई ऑफ समबडी, किसी के बारे में बड़ा गुमान या अच्छा गुमान या ऊंचा गुमान रखना, ठीक है, हम उसके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। वी थिंक हाई ऑफ हिम, हम उसके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में अच्छा गुमान रखते थे। वी थॉट हाई ऑफ हिम, ठीक है, लेकिन जब हमने उनसे मुआमलात करना शुरू किए, कैसे बनाएंगे, बट वेन वी स्टार्टेड डीलिंग विद हिम, बट वेन वी स्टार्टेड डीलिंग विद हिम, मुआमलात करना शुरू किए, तो हमें पता चला, वी फाउंड आउट, वी फाउंड आउट कि वो एक बुरा आदमी था, दैट ही वॉज अ टेरिबल मैन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो बना सकते हैं। ग्रे, खाकिस्तरी रंग का, अब्र आलूद माइल बसफेद बाल, अगर बाल जो है आपके सफेद होने लगते हैं तो इंग्लिश में उन बालों को वाइट नहीं बोलते हैं। बाल आपके सफेद हो रहे हैं, इंग्लिश में उसको योर हेयर्स आर टर्निंग वाइट नहीं बोलते हैं, योर हेयर्स आर गेटिंग वाइट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं, योर हेयर्स आर गेटिंग ग्रे, आप गोट अ ग्रे हेयर, ठीक है जी। मैग्निफिसेंट, अजीम, अजीम उशान, मैग्निफिसेंट, अजीम उशान। वेरी, थका हुआ, वेरी, थका हुआ। टू स्पॉट, देखना, स्पॉट के माने देखना, स्पॉट जगह को बोलते हैं, ऑन द स्पॉट होता है। और किसी चीज को देखना, देखने के लिए भी स्पॉट कलर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, जैसे सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, उनको किसी जगह पर देखा गया तो बोलते हैं, मिसाल के तौर पर शाहरुख खान स्पॉटेड इन जाफराबाद, शाहरुख खान स्पॉटेड इन जाफराबाद। तो इस तरीके से हेडिंग वगैरह आती है न्यूज़पेपर वगैरह में। शाहरुख खान स्पॉटेड इन जाफराबाद मतलब शाहरुख खान को चौहान बांगर में देखा गया, ठीक है। तो स्पॉटेड का मतलब, टू स्पॉट के माना यहां पर देखना, किसी जगह पर किसी शख्स को देखना, टू स्पॉट। प्रिसाइज, दुरुस्त तौर पर बयान करना, है, आर के साथ होता है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वो आर के साथ होता है। अभी कुछ देर में आप दिल्ली में भी देखेंगे,
प्रिसाइज, प्रिसाइज दुरुस्त तौर पर बयान किया हुआ, मिन वान ठीक ठीक, बेकमो कास्त, ये छोटी ता से कास्त है, ठीक है, बेकमो कास्त। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है वही, एक्यूरेट के जो माना होते हैं, एक्यूरेट और एक्यूरेसी के जो माना लिखवाए गए हैं वही प्रिसाइज के माना, दोनों मुतरादिफ हैं ये। प्रिसाइज डिटेल्स, प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज डिटेल ठीक ठीक तफसील, प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन ठीक ठीक हिदायत, ठीक है, और प्रिसाइज मेजरमेंट ठीक ठीक नाप, यानी हर चीज जो तफसील के साथ बताई गई हो, हर हिदायत जो बिल्कुल नपे तुले अंदाज में और सोच समझ कर बयान किए गए हों, और प्रिसाइज मेजरमेंट ऐसा नाप जो बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिसमें कोई कमी बेशी ना की गई हो। कैन यू गिव मी अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, क्या आप मुझे इस लफ्ज की और सही यानी मजीद सही तारीफ बता सकते हैं। कैन यू गिव मी अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, डेफिनेशन बोलते हैं किसको, तारीफ को। प्रेशस कीमती होता है उसके माना, उसके माना कीमती। क्या आप इस लफ्ज की और सही तारीफ बता सकते हैं। तारीफ से याद आया कि दो शख्स मिले आपस में, नए थे, तो उन्होंने कहा और आपकी तारीफ का शौक तो नहीं है लेकिन कर दीजिए। यार करना चाह रहे हैं तो कर ही दीजिए। क्या हुआ। तो तारीफ तारुफ के माने में भी बोला जाता है, तो उसका मफहूम था तारुफ क्या है आपका, लेकिन उसने सोचा कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रेज की बात कर रहा है, क्या शौक तो नहीं है लेकिन कर दीजिए। जैसे कल अनीस मन को उसने 19 मन पढ़ लिया था। जी। जी अच्छा। एज दैट, एज एट दैट प्रिसाइज मोमेंट, एज है ये, एट एट रहे ये एट, एस को टी बनाए, एट दैट प्रिसाइज मोमेंट, ठीक उसी वक्त, एट दैट प्रिसाइज मोमेंट, ठीक उसी वक्त, एट दैट प्रिसाइज मोमेंट, ठीक उसी वक्त, एन उसी लम्हे। दूसरा तर्जमा इसका क्या कर सकते हैं उर्दू में, एन उसी लम्हे। जी प्रिस्क्राइज नहीं, प्रिसाइज, प्रिसाइज। हाँ, और बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं प्रिसाइज के, ये तो एक ही है, और बहुत सारी जगह पर आप जो है, जैसे प्रिसाइज डिटेल के साथ अलग तर्जमा कर सकते हैं, प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन के साथ अलग, प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज मोमेंट, तो ये सब अम, इसको बहुत सारे जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद तफसील के लिए आप जो है डिक्शनरी देख सकते हैं। जोल्ट, हिचकोला, धचका, जोल्ट, हिचकोला, धचका। द बस स्टॉप्ड विद अ जोल्ट, बस झटके के साथ या हिचकोले के साथ रुक गई। टू जोल्ट, हिचकोने हिचकोले खाना, चलती हुई गाड़ी का हिलना। टू एग्जामिन, जांचना। टू करम्पल, कुचलना, मसलना, शिकन जदा होना, करम्पल। जैसे कागज है, कागज को आप ऐसे ऐसे करके फेंक दें तो करम्पल्ड हो गया वो, ठीक है, कुचलना, मसलना, शिकन जदा होना। फेसिंग वॉल, दीवार की तरफ रुख किए हुए, फेसिंग वॉल यानी दीवार की तरफ रुख किए हुए। फेसिंग डायरेक्शन, किसी सिमत की तरफ रुख किए हुए। मिसाल के तौर पर हम नमाज में किबले की तरफ रुख करके खड़े होते हैं। वी स्टैंड इन प्रेयर फेसिंग किबला, वी स्टैंड इन प्रेयर फेसिंग काबा या फेसिंग किबला, तो किबले की तरफ रुख करके खड़े होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे की तरफ रुख करके खड़े हुए थे। दे स्टूड देयर फेसिंग ईच अदर,
وہ وہاں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے کھڑے تھے. They stood there facing each other. گربی گربی مڑی سڑی یا مڑا سڑا میلا کچیلا. اچھا جی. بارکنگ آرڈر. ٹو بارک آرڈر چلا کر کوئی حکم دینا. بارک ہوتا وہی کتے کا بھونکنا جو ہے وہی ہے. اور ان ہٹا دیں بھی یہاں سے, ٹو بار ای بھی ہٹا دیں. ٹو بارک آرڈر چلا کر کوئی حکم دینا, بھونک کر کوئی حکم دینا, چلا کر کوئی حکم دینا. ٹھیک ہے, چلا کر کوئی حکم دینا, ٹو بارک آرڈر. بارکنگ آرڈر جو ہے آئی این جی کے ساتھ, یہ آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا, وہ میرے خیال سینٹنس میں استعمال ہوا ہوگا. بارکنگ آرڈر, ہی واز بارکنگ آرڈر. ٹھیک ہے, یا ہی پاسڈ بارکنگ آرڈرز, اس نے چلا کر جو ہے آرڈرز پاس کیے. اسسٹنٹ معاون. باربر نائی. ٹو اسکری تیز تیز پاؤں اٹھا کر چلنا. ٹو اسکری تیز تیز پاؤں کو اٹھا کر چلنا, اسکری. ریفلیکشن پرتو سایہ عکس. ٹو ریفلیکٹ عکس ڈالنا, عکس پڑھنا. شبیہ دکھانا. بیڈ قطرے, بی ای اے ڈی بیڈ قطرے. سویٹ بیڈ بولتے ہیں موتی کو, ویسے موتی کو بیڈ بولتے ہیں, کس کو؟ موتی کو. جو آپ کے دانے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس کو بھی, تسبیح کے دانے کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی, تو تسبیح کے دانے اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ بیڈ. ٹھیک ہے, اور تسبیح کو بولتے ہیں روزری. روزری, روزری بیڈز تسبیح کے دانے. آرام آرام سے بولا کریں, آرام آرام سے, آرام آرام سے. اتنی زور سے نہ بولا کریں, میں کنفیوز ہو جاؤں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بول رہے ہیں. سویٹ پسینہ. بیڈ آف سویٹ یا بیڈز آف سویٹ پسینے کے قطرے. ٹو میک میٹرز ورس صورت حال کو مزید بدتر بنانا. ٹو میک میٹر ورس صورت حال کو اور برا بنانا. ٹو میک میٹر ورس کا مطلب ہے ٹو میک دا سچویشن ورس. ٹو یینک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچنا. ٹو یینک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچنا. ٹو بودر زحمت کرنا, پرواہ کرنا, پریشان کرنا. ٹو یون جمائی لینا. ٹو یون جمائی لینا. ٹو ٹروٹ درمیانی رفتار سے چلنا, دل کی رفتار سے چلنا. ٹو ٹروٹ. بس ہو گیا. غالب کو جنت کسان یہ لفظ بولتا ہے, کون سا؟ جولٹ, جھٹکے سے اچھا یینک. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک آرڈر, ٹو بارک آرڈرس, ان ہٹا دیں. ٹو بارک آرڈرس. ہیئر کٹ کٹنگ. ترجمہ دیکھیں. When he was a little boy, people who met him for the first time marveled at his name. جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو جو لوگ اس سے ملتے تھے پہلی دفعہ, marveled at his name, اس کے نام پر حیرت کرتے تھے. It was a long name, ایک لمبا نام تھا. And a bit of tongue twister, اور ثقیل اللسان تھا, یا جی زبان پر مشکل تھا. When he started school, جب اس نے اسکول شروع کیا, his teachers preferred to put him down in the class register as D and P. When he started school, جب اس نے اسکول شروع کیا, his teachers preferred,
تو اس کے استاد نے یا اس کے ٹیچرز نے استادوں نے پریفرڈ ترجیح دی ٹو پٹ ہم ڈاؤن ان کو لکھنے کی اس کو لکھنے کی یعنی اس کا نام لکھنے کی ان دا رجسٹر ان دا کلاس رجسٹر کلاس کے رجسٹر میں ایز ڈی این پی کر کے جب اس نے اسکول شروع کیا تو اس کے ٹیچرز نے رجسٹر میں ڈی این پی کے کلاس کے رجسٹر میں ڈی این پی کے طور پر اس کے نام لکھنے کو ترجیح دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نام جو تھا بہت لمبا تھا تو بجائے اس کے کہ پورا نام لکھتے شارٹ میں انہوں نے ڈی این پی لکھ دیا. All his friends called him DNP. اس کے تمام دوست اس کو ڈی این پی کہا کہتے تھے. His mother, who had been responsible for giving him the name in the first place, shortened it even further and addressed him as DN. اس کی والدہ who had been responsible جو کہ ذمہ دار تھی for giving him the name اس کو یہ نام دینے کی in the first place سب سے پہلے اس کی والدہ جو کہ سب سے پہلے اس کو یہ نام دینے کی ذمہ دار تھی shortened it even further اس نے اس نام کو مزید مختصر بنا دیا تھا and addressed him اور وہ اس کو خطاب کرتی تھی ڈی این سے ڈی این بول کر اس کو ایڈریس کیا کرتی تھی یعنی ڈی این بول کر مخاطب کرتی تھی. and his sister اور اس کی بہن not to be outdone وہ پیچھے نہ رہ جائے called him D صرف اس کو ڈی ہی کہا کرتی تھی. ٹھیک ہے. Now that he was older and wiser, DNP or DN or D always introduced himself to others by his full name. اب جب کہ وہ بڑا ہو گیا تھا اور عقل مند ہو گیا تھا ڈی این پی یا ڈی این یا ڈی ہمیشہ اپنے آپ کو متعارف کرایا کرتا تھا اپنا تعارف کرایا کرتا تھا ٹو ادرس دوسرے لوگوں کے سامنے بائی ہز فل نیم اپنے پورے نام سے. کیا نام تھا پورا؟ ڈیوریکنن نلا لگن پارتھا سارتھی. ڈیوریکانن نلا لگن پارتھا سارتھی یہ تھا فل نیم. آپ نے وہ مشہور کلپ تو دیکھی ہی ہوگی کہ بیٹھو نام بتاتے بتاتے پہنچ جائیں گے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ بتاتا ہے اپنا نام. کیا بتاتا وہ اپنا نام؟ وینو گوپال ایئر. کیا بتاتا ہے اپنا نام؟ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ شروع کرتا ہے ایئر پھر اس کے بعد وینو گوپال ایئر پھر وہ کون کون سا مورتی لگاتا ہے اس میں. دیکھی نہیں آپ نے؟ ارے کیا دیکھا پھر آپ نے؟ جو تھا اس کا ایسا ہی تھا. ڈیوریکنن نلا لگن پارتھا سارتھی. He also thought that people would think more highly of him if he grew a fine beard. He also thought اس نے یہ بھی سوچا that people would think more highly of him کہ لوگ اس کے بارے میں اور اونچا سوچیں گے if he grew a fine beard اگر اس نے داڑھی بڑھا لی تو. یہ بات کس پر صادق آتی ہے؟ ہمارے موجودہ وزیر اعظم نریندر کمار داس سوریہ داس دامودر داس مودی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی لاک ڈاؤن میں داڑھی بڑھا لی تھی تاکہ لوگ جو ہے ہاں تو وہ بہرحال کچھ بھی ہو اچھا چلیے آپ نیوز چینل میں چلے جائیں. ڈیوریکنن نلا لگن پارتھا سارتھی. اچھا جی کہاں چلا گیا؟ اس نے سوچا کہ لوگ اس کے بارے میں اونچا سوچیں گے اگر وہ داڑھی بڑھا لے تو. سو ہی ڈیڈ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. اینڈ اٹ واز اے ویری فائن بیئرڈ انڈیڈ اور یقیناً یہ بڑی زبردست داڑھی تھی. اٹ واز اے مارویلس بیئرڈ ایک حیران کن ایک شاندار داڑھی تھی. ایز دا ایئرس وینٹ بائی جیسے جیسے سال گزرتے گئے ڈیوریکنن نلا لگن پارتھا سارتھیز اسمارٹ امپریسو بیئرڈ ٹرنڈ ویری گرے. ڈی این پی کی خوبصورت
اور बारुब दाढ़ी, turned very grey, बहुत सफेद हो गई. It was still a magnificent sight, but when he started to grow his hair long, he began to look a little like a tramp. It was still a magnificent sight. अभी भी ये एक शानदार अजीमुशान मंजर होता था, यानी उसको देखकर जो है जबरदस्त लगता था. बट लेकिन when he started to grow his hair long, जब उसने अपने बाल भी लंबे करने लगे, जब वो अपने बाल लंबे करने लगा, he began to look a little like a tramp, तो वो थोड़ा फकीर जैसा दिखने लगा. जब बाल भी लंबे कर लिए, दाढ़ी भी लंबे कर ली, तो थोड़ा फकीर जैसा दिखने लग गया. One hot day, एक गर्मी के दिन में, as he was walking down the road to the market to buy some vegetables for his lunch, जिस दौरान वो रास्ते पर चल रहा था, मार्केट जाने वाले रास्ते पर चल रहा था, to buy some vegetables for his lunch, अपने लंच के लिए कुछ सब्जियां खरीदने, he suddenly felt a little weary, अचानक से उसको कमजोरी महसूस हुई, थका हुआ महसूस करने लगा अचानक से. और ड्यूरेकन नल्ला लगन पाता साथी टुक ऑफ हिज कैप, उसने अपनी टोपी को उतारा. वाइप्ड हिज हेड विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से अपने सर को साफ किया. बिफोर रिप्लेसिंग इट केयरफुली ऑन हिज हेड, फिर वापस उसको सर पर रख दिया. उसको बिल एहतियात या एहतियात के साथ वापस अपने सर पर रखने से पहले. द कैप यूज्ड टू फिट परफेक्टली वेल, कैप उसके सर पर बहुत अच्छे से फिट होया करती थी. Until he started to grow his hair long, जब तक कि उसने दाढ़ी अपनी जब तक कि उसने अपने बाल बढ़ाना शुरू नहीं किए थे. यानी कैप अच्छे से फिट हो जाती थी, लेकिन दाढ़ी बढ़ाने लग गया तो फिर जो है टाइट हो गई. Fortunately for ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी, he was passing the lakeside memorial garden at this time. खुशकिस्मती से ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी की कि वो लेक साइड मेमोरियल गार्डन्स के पास से गुजर रहा था. ये जगह का नाम है, लेक साइड मेमोरियल गार्डन्स के पास से गुजर रहा था. एट दिस टाइम, इस वक्त. एंड ही स्पॉटेड एन एम्प्टी बेंच, और उसने एक खाली बेंच को देखा, यानी खाली बेंच वहां पर रखी थी तो उसको देखा. बिसाइड द आउटर फेंस ऑफ द पार्क, पार्क की बाहर वाली बाड़ या फसील के बराबर में. सो चुनांचे ही सेट डाउन, वो नीचे बैठ गया. टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट आराम करने के लिए. As he sat in the scorching sun, जब वो उस तेज या चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ था, wondering, सोचते हुए, how he was going to carry those vegetables home, कि कैसे वो उस सब्जी को उठाकर घर लेकर जाएगा. ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी decided to close his eyes for a moment or two. डीएनपी ने फैसला किया कि अपने आंख को एक दो मिनट के लिए, एक दो लम्हे के लिए बंद कर ले. In precisely 30 seconds, ठीक 30 सेकेंड्स में, he had dozed off, उसकी आंख लग गई. His head dropped forward, और उसका सर आगे की तरफ झुक गया. Till his bearded chin rested on his chest, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी वाली his bearded chin, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी वाली ठोड़ी rested on his chest, उसके सीने पर आकर लग गई. And his cape fall into his lap, और उसका टोपा उसकी गोद में गिर गया. ठीक है, टोपा पहले से ही टाइट था, और आप ही की तरह जो है गर्दन जो है उसकी गिर गई, और क्या कहते हैं, टोपा उसकी गोद में गिर गया. ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी स्नोर्ड, डीएनपी जो है खर्राटे लेने लगा. हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, अ बार्किंग डॉग वॉक हिम फ्रॉम हिज नैप, एक भौंकते हुए कुत्ते ने उसको उसकी नींद से जगाया. ही सेट अपराइट विद अ जोल्ट, वो एक झटके के साथ सीधा उठ बैठा. इट टुक him a few seconds to remember where he was, उसे चंद सेकंड लगे ये याद करने के लिए कि वो कहां पर है. where he had come from, कहां से आया है. and where he was going, और कहां जा रहा था. and then he noticed his cap in his lap, और फिर उसने अपनी गोद में अपने टोपी को उसने नोटिस किया. much to his amazement, उसकी हैरत की इंतहा न रही. much to his amazement, उसकी हैरत की इंतहा न रही. ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी कैप हैड अ फ्यू कॉइंस इन इट, डीएनपी की टोपे में चंद सिक्के पड़े हुए थे. ठीक है, यानी कि वो सोया तो आंख लग गई, और
बाल, वो टोपा जो था वो टाइट आता था, तो जब ऐसे सर गिरा तो टोपा जो है नीचे गोद में गिर गया, और लोगों ने सोचा कोई फकीर है, तो आते जाते लोगों ने जो है उसमें पैसे डालने शुरू कर दिए। तो much to his amazement, DNP's cap had a few coins in it. Much to his amazement, उसकी हैरत की इंतहा ना रही। इसका तर्जुमा करेंगे इस तरह, उसको बड़ी हैरत हुई कि डीएनपी, बड़ी हैरत की बात कि डीएनपी के टोपे में चंद सिक्के पड़े हुए थे। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, ये कहां से आए? ही आस्क्ड हिमसेल्फ लुकिंग bemused, हैरान दिखते हुए उसने खुद से ये सवालात पूछे। एज ही सेट एग्जामिनिंग द coins, जिस दौरान वो उन सिक्कों को एग्जामिन कर रहा था, जांच रहा था, अ पासर बाय स्टॉप्ड, एक करीब से गुजरने वाला रुका। पासर बाय, करीब से गुजरने वाला, स्टॉप्ड रुका, एंड एडेड अनदर कॉइन टू हिज कलेक्शन, और उसके मजमुए में एक और सिक्के का इजाफा कर दिया, यानी एक और सिक्का डाल दिया। ड्यूरेकनन नल्ला लगन पारता सारथी वॉज ग्रेटली शॉक्ड, डीएनपी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। माई गुडनेस, ही एक्सक्लेम्ड, पीपल आर गिविंग मी मनी बिकॉज दे थिंक आई एम अ ट्रैम्प। अरे यार, उसने ताज्जुब का इजहार किया, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं फकीर हूं, मैं भिखारी हूं। जी, he he hastily removed the coins from the cap. He hastily, नहीं नहीं, चलने दे, कोई हर्ज नहीं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो, इफ यू डोंट माइंड। ही हेस्टिली रिमूव द coins, उसने जल्दी से सिक्कों को गोद से हटाया। प्लेस्ड इट ऑन हिज, सॉरी, टोपी को उसने जो है टोपी से सिक्कों को निकाला, हटाया। प्लेस्ड इट ऑन हिज कैप, और टोपी को सर पर रखा। स्टूड अप, सीधा खड़ा हुआ। एंड ब्रश्ड हिज जैकेट, और अपने जैकेट को साफ किया, ऐसे झाड़ा उसने। यस, इट्स ऑल लुकिंग अ लिटिल क्रम्पल्ड, हाँ यार, थोड़ा सा मुड़ा सुड़ा या घिसा पिटा तो दिख रहा है, यानी थोड़ा सा खराब तो दिख रहा है भाई। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद ही अपने दिल में सोचा। एंड परहैप्स, और शायद, इट्स टाइम फॉर अ न्यू लुक, वक्त आ गया है एक नए लुक का, वक्त आ गया है एक नए लुक का। ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्था सारथी, अपने आप को मुखातब किया उसने, डीएनपी, तुम्हारा एक नए लुक हासिल करने का वक्त आ गया है। आई एम गोइंग टू री इन्वेंट यू, मैं तुमको मैं तुमको दोबारा से ईजाद करने जा रहा हूं। तुमको यानी कि वो अपने आप को कह रहा है, डीएनपी, मैं तुमको क्या करने जा रहा हूं? री इन्वेंट करने जा रहा हूं, दोबारा से ईजाद करने जा रहा हूं। दोबारा से ईजाद करने का मतलब यानी एक नई शनाख्त देने जा रहा हूं। विद दिस डिसीजन मेड, ये फैसला तैयार करके, बनाकर, ये फैसला बनाकर, डीएनपी मूव्ड अलोंग टुवर्ड्स द मार्केट विद ग्रेट स्पीड। डीएनपी मार्केट की तरफ बड़ी रफ्तार से चलने लगा। एट द मार्केट, मार्केट में, ही डिड नॉट गो टू द वेजिटेबल स्टॉल, वो सब्जी वाले की स्टॉल पर, ठेली पर नहीं गया। ही मार्च्ड स्ट्रेट इनटू सोनीज स्टाइल सलून, वो सीधा जो है सोनीज स्टाइल सलून, ये नाम है दुकान का, उस दुकान के अंदर जो है सीधा वो घुस गया। हा, thought Devarakonda Nalla Lagan Parthasarathi as he entered the saloon and looked around the place. हाँ, डीएनपी ने सोचा जब वो सलून में दाखिल हुआ, एंड लुक्ड अराउंड द प्लेस, और उस जगह के इर्द गिर्द देखा, उस जगह को चारों तरफ देखा। कांट स्पेल, बट आई होप दे कैन कट हेयर, स्पेलिंग तो ठीक से नहीं लिख सकते, बट आई होप दे कैन कट हेयर, लेकिन उम्मीद है कि वो बाल सही काट सकते हैं। सलून की स्पेलिंग होती है SALON, लेकिन पढ़ा जाता है सलून। पढ़ा जाता है क्या? सलून। लिखा जाता है सिंगल ओ से, पढ़ा जाता है सलून। तो वही सोनीज स्टाइल सलून दुकान का नाम था। तो दुकान का नाम देखकर बोला, अच्छा, दुकान, पहले तो नाम देखा, फिर दुकान के अंदर देखा, दुकान साफ सुथरी थी, बड़ी दुकान थी, अच्छी दुकान थी, लेकिन नाम गलत था। तो देखकर कहता, अच्छा चलो, स्पेलिंग तो गलत कर रखी है, लेकिन बाल तो शायद ठीक ठाक काटते हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा जी, ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। चलिए आगे, कहाँ थे हम?
There were 5 chairs in front of 5 long mirrors on the facing wall. There were 5 chairs, 5 कुर्सियां थीं, in front of 5 long mirrors, 5 लंबे शीशों के सामने, on the facing wall, सामने वाली दीवार पर. 4 of the chairs were taken, 4 कुर्सियां ली जा चुकी थीं, ले ली गई थीं, यानी कि 4 कुर्सियां मकबूजा थीं, उन पे कोई बैठा हुआ था. And the 4 gentlemen occupying these chairs were having their haircut. और इन कुर्सियों पर बैठे 4 जेंटलमैन अपने बाल कटवा रहे थे. टू ऑक्यूपाई के माने कब्जा करना होता है, लेकिन ऑक्यूपाई सीट के माने में जब बोलते हैं तो सीट पर बैठना, सीट लेना. ठीक है. दिस सीट इज ऑक्यूपाइड. ये सीट जो है ऑक्यूपाइड है, यानी मकबूजा है, यानी ये सीट किसी की है, खाली नहीं है. ये मतलब होता है क्या? दिस सीट इज ऑक्यूपाइड. ये सीट जो है क्या कहते हैं, खाली नहीं है, इस पे कोई बैठा हुआ है. दिस सीट इज टेकन, इसका भी यही मफहूम होता है कि ये सीट खाली नहीं है. अच्छा जी, तो 4 जेंटलमैन जो उन कुर्सियों पर बैठे हुए थे, वर हैविंग देयर हेयर कट, वो अपने बाल कटवा रहे थे. द रूम फेल्ट लाइक एन ओवन. कमरा एक भट्टी की तरह लग रहा था, भट्टी जैसा महसूस हो रहा था. ओवन जिस पे खाना बनाते हैं, भट्टी चूल्हा, उसको बोलते हैं ओवन. बट डीएनपी वॉज डिटरमिन टू स्टे. लेकिन डीएनपी ने अज़्म किया हुआ था वहां रुकने का. द ओनर वॉज अ लार्ज मैन विद एट लीस्ट 3 चिन्स. ओनर यानी मालिक जो था एक बड़ा आदमी था, कम अज कम 3 ठोड़ियां थी उसकी. 3 ठोड़ियों वाला एक बड़ा आदमी था. 3 ठोड़ियों वाला मतलब यह है कि उसकी गर्दन बहुत मोटी थी, और ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, 3 वो बन रही थी उसकी. ठोड़ी जो है 3 बन रही थी. यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं. There was not a single hair on his head. उसके सर पर एक बाल नहीं था, सर पर उसके एक बाल भी नहीं था. He greeted DNP with a bow. उसने झुककर DNP का सलाम किया. Hello, said the owner. Owner ने कहा hello, nodding his shiny head. अपने चमकदार टकले को from side to side, एक तरफ से दूसरी तरफ चमकाते हुए उसने कहा hello. Haircut, trim, shampoo, washing, beard, all. उसने ये तमाम बातें बोली, यानी ये तमाम हेयर कट करवाना है, या ट्रिम बोले तो थोड़ी मतलब छटाई करवानी है, शैम्पू या शैम्पू लगवाना है, वॉशिंग या धुलाई करवानी है, बियर्ड या दाढ़ी पे काम कराना, या ऑल ये सब कुछ कराना. ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्थसारथी wondered if the man knew any 2-word sentences. डीएनपी ने सोचा कि भाई इस आदमी को 2 लफ्ज वाला कोई सेंटेंस आता भी है. ये सारे एक एक लफ्ज में पूछ रहा है, सारे सवाल इसने एक एक लफ्ज में करे हैं, इसको 2 लफ्ज वाले सेंटेंस आता भी है. अच्छा जी. एज ही थॉट अबाउट दिस, जिस दौरान वो ये सोच ही रहा था, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ वन ऑफ द लॉन्ग मिरर्स ऑन द वॉल. उसने अपने आप को शीशे पर लगे लंबे शीशों में से, दीवार पर लगे लंबे शीशों में से एक शीशे में अपने आप को देखा. इट वॉज नॉट अ प्रीटी साइट. मंजर अच्छा नहीं था, यानी उसको अपने आप को देखकर क्या अच्छा नहीं लगा. इट वॉज नॉट अ प्रीटी साइट, देखकर मजा नहीं आया. ठीक है. इट वॉज नॉट अ प्रीटी साइट, मंजर खुशगवार नहीं था. यस, रिप्लाइड ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्थसारथी. डीएनपी ने जवाब दिया हाँ. वॉशिंग, शैम्पू, नो. हेयर कटिंग, ट्रिम, बियर्ड, यस. यानी वॉशिंग और शैम्पू ये तो नहीं करना है. जैसे उसने एक वर्ड में सवालत किए थे, ऐसे उसने एक वर्ड में जवाबात भी दिए. वॉशिंग, शैम्पू, नो. हेयर कटिंग, ट्रिम, बियर्ड, यस. ठीक है. अच्छा. सिटिंग प्लीज, सेड द मैन पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर. सिटिंग प्लीज. उस आदमी ने एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा. क्या कहा? सिटिंग प्लीज. said ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्थसारथी to himself as he sat down. अरे वाह. डीएनपी ने अपने आप में दिली दिल में सोचा जब वो बैठ रहा था. 2 words, चलो 2 लफ्ज तो बोले.
इनकरेक्ट ग्रामर, ग्रामर अगरचे गलत है, सिटिंग आईएनजी फॉर्म में लेकर आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस है लेकिन आईएनजी फॉर्म में बना रहा है, ग्रामर तो गलत है। बट टू वर्ड्स इन वन सेंटेंस, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर दो जुमले, बड़ी बात है भाई, एक सेंटेंस के अंदर दो जुमले, दो सॉरी एक जुमले के अंदर दो लफ्ज बोले, सिटिंग और प्लीज, दो लफ्ज बोल दिए इस बार इसने, बड़ी बात है ये। आई होप ही कैन डू बेटर विद माई हेयर, उम्मीद है कि मेरे बाल के साथ ये और बेहतर ही करेगा। अच्छा जी, आप नीचे देख ही लीजिए सलून का मंजर, और ख़ास तौर पर जो हमारे सोनीज सलून हैं इनका मंजर देख लें। तीन चिन का नक्शा बहुत अच्छे से खींचा है जी। अच्छा जी, चलिए आगे। मिस्टर सोनी, द ओनर ऑफ सोनीज स्टाइल सलून, wrapped a sheet around the neck of ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्था साथी। मिस्टर सोनी ने एक चादर लपेटी डीएनपी के गर्दन के करीब, ठीक है। मिस्टर सोनी यानी कि सोनीज स्टाइल सलून, ये जो दुकान था उसका ओनर, ठीक है। रैप्ड अ शीट, उसने एक चादर लपेटी। आप जाते हैं तो वो क्या करता है, एक चादर को या तौलिए को आपके सड़े हुए से और क्या कहते हैं वो लपेट देता है ना, ठीक है। तो अब तो खैर एडवांस हो गया, अब तो खैर प्लास्टिक के और इस तरीके का सामान इस्तेमाल करते हैं जिसमें गंदगी, पहले तो अल्लाह माफ करे तौलिया ही लगा देते थे, जाओ तेल लेने। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, रैप, लफ्ज रैप का इस्तेमाल, WRAP, रैप। रैप का मतलब क्या होता है? लपेटना। जैसे किसी तोहफे वगैरह को आप लपेटते हैं ना, लपेट कर उसकी पैकिंग वगैरह करके देते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? रैप करना, ठीक है, लपेटना। द शीट कवर्ड हिज चेस्ट एंड आर्म्स एंड रीच्ड ऑलमोस्ट टू द फ्लोर। वो शीट जो थी, वो चादर जो थी, वो कवर कर रही थी उसके सीने को, यानी ढांके हुई थी उसके सीने को, उसके हाथों को, और तकरीबन फर्श तक पहुंच रही थी। इट वॉज अ लिटिल गरबी, थोड़ी घिसी पिटी थी। बट डीएनपी डिड नॉट माइंड, लेकिन डीएनपी को बुरा नहीं लगा। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उसने अपना अपना इरादा कर लिया था, उसने अपना दिमाग बना लिया था, या अपना उसने अपना जहन बना लिया था। जहन बनाने यानी उसने पूरा पक्का फैसला कर रखा था कि बाल कटवाना ही है। मिस्टर सोनी बार्क्ड एन ऑर्डर टू वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर्स। मिस्टर सोनी ने अपने एक मुआविन बार्बर को यानी नाई को चिल्लाकर हुक्म अहकामात दिए, हुक्म बताया। द यंग असिस्टेंट स्करीड फॉरवर्ड, जो छोटा मुआविन था वो भागता भागता या तेज तेज कदमों से आगे आया। कैरिंग अ कॉम इन वन हैंड, एक हाथ में कंघी उठाए हुए, एंड क्लिकिंग अ शार्प पेयर ऑफ सीजर्स इन द अदर, और दूसरे हाथ में एक कैंची को चलाते हुए, ठीक है, यानी कैंची लेके दूसरे हाथ में ऐसे ऐसे कर रहा था, जैसे आपने देखा होगा ना, वो नाइयों को आदत होती है, वो एक बार बाल काटेंगे फिर तीन बार ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, एक बार बाल काटने फिर तीन बार ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, शुक्रिया आपने वजाहत कर दी, आपकी वजाहत इतनी कारआमद रहती है कि हमारा दिमाग खुल जाता है, हमारे 7 से 14 तबक के बीच में कोई ना कोई सा तबक रोशन हो ही जाता है जी। चले आगे, कहाँ था? तो एक हाथ में वो कंघी पकड़ के और दूसरे हाथ से कैंची चलाता हुआ आया, तेज तेज चलता हुआ आया। ही स्माइल्ड एज ही अप्रोच्ड, वो जब करीब आया तो मुस्कुराया। एंड नोडेड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और एक तरफ से दूसरी तरफ उसने सर हिलाया। जस्ट लाइक हिज बॉस, ठीक अपने बॉस की तरह। ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्था साथे डिड नॉट से अ वर्ड, डीएनपी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ही स्टेयर्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, वो अपने वो शीशे में अपने अक्स पर, अपनी अपने रिफ्लेक्शन पर घूरता रहा। while the barber clicked away while the barber clicked away at the top of his head, जबकि जिस दौरान नाई जो है वो कैंची जो है चला रहा था उसके सर के ऊपर। beads of sweat began to drip from DNP's nose,
अच्छा जी, पसीने के कतरात या पसीने के मोती क्या कहते हैं, डीएनपी की नाक पर से गिरने लगे. He had been hot. He had been hot outside the saloon. वो बाहर भी, सलून से बाहर भी क्या था, गर्म था. He was hotter inside this oven like room. और इस भट्टी जैसे कमरे के अंदर उसको मजीद ज्यादा गर्मी लगने लगी. एंड टू मेक मैटर वर्स, और सूरत हाल मजीद खराब इस बात पर हो गए कि मिस्टर सोनी हैड टक्ड हिम अप इन अ ब्लैंकेट, कि मिस्टर सोनी ने उसको कंबल से जो है ढांक दिया था. टू टक समबडी अप या टू टक समबडी के माना होते हैं जैसे सुलाते वक्त जो है कंबल वगैरह उड़ा देते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए टक्ड हिम अप इन अ ब्लैंकेट, अपने उसको जो है कंबल में ढांक लिया था. ड्यूरेकनन लल्ला लगन पाटा साथी बिगेन टू नोट, डीएनपी जो है उसको ओंघ आने लगी. नॉट लाइक मिस्टर सोनी और हिज असिस्टेंट हैड डन, बट अ स्लीपी नोड. और नोड का मतलब यहां पर ये नहीं जैसा कि मिस्टर सोनी और उसके असिस्टेंट ने किया था, यानी ऐसे ऐसे वाला नोड नहीं, बल्कि नींद वाला नोड. नोड के दोनों माना आते हैं ना. टू नोड के माने सर हिलाना, ये भी आते हैं, और टू नोड के माने सोना. तो यहां पर नोड जो है वो वाला नहीं जो मिस्टर सोनी ने और उसके असिस्टेंट ने किया था ऐसे ऐसे, बल्कि यहां पर नोड से मुराद सोना, ये बोल रहा है मुसन्निफ. अच्छा जी, नोट लाइक मिस्टर सोनी और असिस्टेंट हैड डन, उस तरह की नोट नहीं जिस तरीके की मिस्टर सोनी और उसके असिस्टेंट ने की थी, बट अ स्लीपी नोट, बल्कि एक सोने वाली नोट. एवरी टाइम हिज चिन फेल फॉरवर्ड ऑन टू हिज चेस्ट, हर दफा जब भी उसकी चिन यानी उसकी ठोड़ी फेल फॉरवर्ड आगे गिरती, ऑन टू हिज चेस्ट उसके सीने पर, द बार्बर यांक्ड इट अपराइट, तो बार्बर उसको खींच कर ऊपर कर देता. बट दिस डिड नॉट वरी डीएनपी, लेकिन इस बात ने डीएनपी को परेशान नहीं किया. ही वॉज टू हॉट एंड टायर्ड टू बोदर, उसे इतनी गर्मी और इतना थका, उसे इतनी गर्मी लग रही थी, इतना थका हुआ था कि उसको उसको परेशानी नहीं हो रही थी. टू हॉट एंड टायर्ड टू बोदर, इतनी गर्मी और इतना थका हुआ था कि उसको तकलीफ नहीं हो रही थी, उसको जहमत नहीं हो रही थी. ही सून फेल साउंडली asleep, जल्द ही वो गहरी नींद सो गया. साउंडली इज द राइट वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्लीप, साउंडली एक बेहतर लफ्ज है इस तरह की स्लीप के लिए. बिकॉज ड्यूरेकनन नल्ला लगन पारता सारथी मेड एन ऑफुल साउंड, क्योंकि ड्यूरेकनन नल्ला लगन पारता सारथी खतरनाक आवाज निकाल रहा था. ही स्नोर्ड लाउडली, वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था. साउंड स्लीप या स्लीप साउंडली के माना आते हैं गहरी नींद सोना, लेकिन साउंड लफ्ज के माना आवाज के भी आते हैं. तो ये ऐसा लफ्ज है जिसमें दो माना आते हैं. तो बोल रहे हैं कि साउंडली जो है ये लफ्ज यहाँ पर सही लफ्ज है, क्योंकि जिस किस्म की नींद थी वो उस माना सही से सोने के माना में तो थी वो, लेकिन चूंकि आवाज भी आ रही थी उसकी नींद में से, यानी वो खर्राटे भी ले रहा था, तो ये बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब लफ्ज है. एक लफ्ज से दो माना की तरफ और दो मफहूम की तरफ इशारा हो गया. ही स्नोर्ड लाउडली, वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था. हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, डीएनपीज आईज ओपन स्लीपीली, उसकी आंखें जो हैं खुली, स्लीपीली नींद से, यानी नींद में अभी भी उसकी आंखें थी. ही यॉन्ड, उसने जमाई ली, एंड स्ट्रेच्ड, और अंगड़ाई ली, एंड देन रिमेंबर्ड, और फिर उसको याद आया कि वो कहाँ पर था. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा. ही स्टेड, वो उसने घूरा. ही ब्लिंक्ड, उसने पलक झपकाई, ठीक है, ऐसे करके देखा, फिर ऐसे करके देखा, उसको यकीन नहीं आ रहा था ना. ही स्टेड अगेन, फिर दोबारा से घूर कर देखा. द रिफ्लेक्शन इन द मिरर वॉज नॉट वन ही रिकॉग्नाइज, शीशे में जो अक्स नजर आ रहा था वॉज नॉट वन ही रिकॉग्नाइज, वो अक्स नहीं था जिसको वो पहचानता था. यानी शीशे में जो शख्स अब नजर आ रहा था वो पहचान में नहीं आ रहा था. इट वॉज नॉट ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्था साथी, ये डीएनपी नहीं था, बट सम अदर मैन, बल्कि कोई और आदमी था. ही रेज्ड वन आर्म, उसने एक हाथ उठाया, एंड विंग्ड, और पलक झपकाई, जस्ट टू मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, दैट द मैन इन द मिरर वाज हिमसेल्फ, कि शीशे में जो आदमी नजर आ रहा था वो वही था.
ड्यूरेगनन नल्ला लगन पाता साथी leaped out of his chair. डीएनपी अपनी कुर्सी से कूद पड़ा. leaped out of his chair, अपनी कुर्सी से बाहर कूद पड़ा, and screamed, और चिल्लाया. He pointed at the man in the mirror. उसने शीशे में उस आदमी की तरफ इशारा किया. And then turned to face Mr. Sony. और फिर मिस्टर सोनी की तरफ मुतवज्जे हुआ. Who was hurrying towards him, जो कि उसकी तरफ जल्दी जल्दी दौड़ा हुआ आ रहा था. What have you done? क्या कर दिया तुमने? cried ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी. ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी ने चिल्लाकर बोला. Where is it? कहाँ है ये? I asked you to trim my beard, not to shave it off. मैंने तुमसे दाढ़ी को ट्रिम करने के लिए बोला था, उसको शेव करने के लिए नहीं बोला था. Beard shaving, replied Mr. Sony. Mr. Sony ने बोला, beard shaving? Using a rare two-word sentence again. दोबारा से अपने नादिर दो लफ्ज के जुमलों का इस्तेमाल करते हुए, and nodding his head from side to side, और अपने सर को साइड से एक साइड से दूसरी साइड हिलाते हुए. Beard shaving? Okay. There is nothing okay about it. अरे कोई कुछ ठीक वीक नहीं है. क्राइड ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी. डीएनपी चिल्लाकर बोला. स्ट्रोकिंग हिज स्मूथ चिन, अपनी हमवार चिन को यानी ठोड़ी को सहलाते हुए. अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉलो, एक लंबी बहस छिड़ गई. डीएनपी इंसिस्टेड ऑन पेइंग लेस, डीएनपी इसरार कर रहा था कम पैसे देने पर. बिकॉज मिस्टर सोनी हैड नॉट फॉलोड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मिस्टर सोनी ने उसके अहकामात की तामील नहीं करी थी. जैसे उसने हिदायत दिए थे उसको फॉलो नहीं किया था. ही कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की, दैट ही हैड कम इनटू द सलून एज ड्यूरेकनन नल्ला लगन पाता साथी, कि वो इस सलून में आया था, दाखिल हुआ था डीएनपी बनकर, एंड वाज लीविंग एज समबडी एल्स, और इस सलून को छोड़कर जा रहा है कोई और शख्स बनकर. मिस्टर सोनी वांटेड मोर मनी, मिस्टर सोनी को और पैसे चाहिए थे. बिकॉज अ ग्रेटर नंबर ऑफ हेयर्स हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टमर हेड, क्योंकि कस्टमर के सर से तो और ज्यादा बाल उसको काटने पड़े थे, बाल काटे गए थे. फाइनली, बिल आखिर, आफ्टर लॉन्ग डिबेट, एक लंबे मुबाहसे के बाद, अ वेरी अनहैप्पी डीएनपी लेफ्ट द सलून, एक बहुत ही नाखुश डीएनपी सलून को छोड़कर बाहर निकला. ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज वेजिटेबल्स, वो सब्जियों के बारे में सब कुछ भूल गया. एंड हेडेड टुवर्ड्स द बस स्टैंड, और सीधा बस स्टैंड की तरफ चला गया. ही मम्बल्ड, ग्रम्बल्ड एंड कर्स्ड ऑल द वे देयर, वो बड़बड़ करता रहा, शिकायत करता रहा, गाली बकता रहा पूरे रास्ते वहां तक. डीएनपी जॉइंड द क्यू एंड वेटेड फॉर हिज बस, डीएनपी वहां कतार में शामिल हो गया. एंड वेटेड फॉर हिज बस, और अपनी बस का इंतजार करने लगा. ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अ वुमन हु वॉज वेयरिंग अ कलरफुल साड़ी, वहां एक वो औरत के पीछे खड़ा हुआ था जिसने एक रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई थी. ही ट्राइड हार्ड टू गेट अंडर द शेड ऑफ हर अम्ब्रेला विदाउट गेटिंग टू क्लोज, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी छतरी के साए के नीचे आ जाए, उस औरत से बहुत ज्यादा करीब हुए बगैर. देन द लेडी टर्न टू हिम एंड स्पोक, तभी वो औरत जो है उसकी तरफ मुड़ी और बोली. यंग मैन, सेड द लेडी प्लेजेंटली, अरे नौजवान आदमी, उस औरत ने खुशगवार लहजे में बोला. आई लेफ्ट माई वॉच एट होम, मैं घड़ी अपनी घर पर भूल गई हूँ. वुड यू काइंडली टेल मी द टाइम, तुम मुझे टाइम बताओगे? सर्टेनली सेड ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्था सारथी विद अ स्माइल, ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्था सारथी ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बताता हूं मैं, क्या टाइम है? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, ये जश्न मनाने का वक्त है. इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, ये जश्न मनाने का वक्त. व्हाट्स द टाइम, तो वो उससे पूछती है, कुड यू टेल मी द टाइम? बोलता है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, सेलिब्रेट करने का टाइम है. अच्छा जी. द लेडी गेव ड्यूरेकनन नल्ला लगन पार्था सारथी अ वेरी ऑड लुक, उस लेडी ने डीएनपी को अजीब नजर से देखा. बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन डीएनपी ने परवाह नहीं करी. यंग मैन, ही रिपीटेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो बोल रहा था बार बार, यंग मैन. अच्छा जी. एज ही लेफ्ट द क्यू, जिस दौरान वो लाइन को छोड़कर निकला. एंड ट्रोटेड होम, और पैदल ही घर चल दिया, तेज दल की चाल से, यानी दरमियाना रवि से घर की तरफ चल दिया. स्टिल स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, यानी उसको बहुत जमाने बाद किसी ने जो है यंग मैन बोला था, तो वो इस बात पर खुश था और कहता है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट,
ٹھیک ہے، بال کٹوانے کے بعد جو ہے اب وہ مزید ٹرمپ نہیں دکھ رہا تھا، بھکاری نہیں دکھ رہا تھا، بلکہ اب وہ ینگ مین نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو جب اس نے یہ سنا ینگ مین، تو اس کے اندر جو ہے خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور جمے ہوئے خون میں پھر سے جو ہے ایک آتش کی لہر دوڑ پڑی، اور کیا کہتے ہیں، اور سیلیبریشن کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گیا. جی